बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले बच्चों हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया था कि जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी। But later on, in the beginning of 20th century, when electron, proton and neutrons were discovered, it means the atom is now no longer an intact atom. It can further be divided into some simpler particles जैसे कि electrons, protons और neutrons. And after the discovery of electron, protons, neutrons as the subatomic particle, the major problem arises at that time was कि अगर ये particles हैं, how we can account for the stability of atom. Electron, proton, neutrons जो इसके constituents हैं, how they are inside the atom, how they take the position and what is the reason behind their stability. एंड सेकेंडली उन एटम्स के बिहेवियर को कंपेयर करना रिगार्डिंग देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड थर्ड वन, एटम व्हेन गेट कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। सो टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन वाज अगेन ए टास्क। व्हाई डू एटम कंबाइंस? व्हाई एटम इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम दे फॉर्म a molecule? And lastly, कोई भी एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। What is the reason behind this? Why atom absorbs this electromagnetic radiation? What is inside this atom which enable it to get this energy? And how the atom reflects that absorbed amount of electromagnetic radiation. Topic is subatomic particles. Dalton theory could explain some of the points, could explain why the atom combines in a fixed ratio. It means it explained the certain laws like law of constant proportion, law of constant composition, law of multiple proportion, law of conservation of mass. So these laws were explained by the Dalton theory, but Dalton theory failed to explain कि अगर हम क्या करें, इफ वी टेक ग्लास और इबोनाइट रॉड, चाहे आप ग्लास की रॉड ले लो या इबोनाइट की रॉड ले लो, जब हम इनको रब करते हैं, जैसे इसको हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं या जैसे इबोनाइट रॉड को हम फर से रब करते हैं, चार्ज गेट्स डेवलप्ड। इनके ऊपर जैसे ग्लास रॉड के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ऐसे ही यहां पर फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जबकि इस केस में सिल्क पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द चार्ज? तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज है, ये डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके लिए हमें क्या चाहिए इस सेक्शन में, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर दिखाया गया है, तो दैट इज at this time is well known that is due to the transfer of electron. तो इस सेक्शन में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Now we'll study how the electrons were discovered. Discovery of electrons 1850 में फैराडे ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था। This is a glass tube which is called as cathode ray tube. This cathode ray tube is connected to a vacuum pump. The gas is
filled inside this tube can maintain sufficiently low pressure using this vacuum pump. Now, this glass tube has two metal electrodes at its ends. This is cathode, which is negatively charged, and this one is anode. Low pressure of the gas is maintained using this vacuum pump, and when these electrodes are connected to high potential supply, यहां हमने हाई पोटेंशियल बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होने जाएगा? What actually will happen? There is a potential difference between these two electrodes. और मीडियम क्या है यहां पर? There is a gaseous molecules inside, gaseous atoms inside. When at sufficiently low pressure, high voltage is applied, then it is seen a stream of particles which originates from cathode and travels towards anode. This stream of particle is then called as cathode ray. इसको कैथोड रे क्यों कहा गया? Because it is just starting from cathode and moving towards एनोड. अब ये जो रे है कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है, बट दिस रे इज नॉट विजिबल. तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने एनोड को परफोरेटेड बनाया. परफोरेटेड मींस इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ पोर्स बना दिए. इन पोर्स से ये पार्टिकल्स पास कर सकते हैं, और यहां पर हमने ग्लास पर एट द बैक ऑफ दिस एनोड एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दिया. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड, SCENT, जिंक सल्फाइड. अब जैसे ये पार्टिकल्स इन पोर से होकर गुजरते हैं और स्ट्राइक करते हैं इस ग्लास पर, तो चमक पैदा होती है, सिंटिलेशन पैदा होता है, जो कि इसकी प्रेजेंस को बताते हैं कि देयर इज सम पार्टिकल्स व्हिच आर जस्ट स्ट्राइकिंग हियर एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्लो साइन देयर. थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, the results which comes out here is, number 1, the ray which is just starting from cathode and traveling towards anode, that is moving in a straight line. अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, तो ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. एंड द पॉइंट 2, इनके बिहेवियर को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई इसके इंपैक्ट को देखना पड़ेगा. डायरेक्टली ये रे हमें नजर नहीं आती, दिस इज इनविजिबल, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स दिस जिंक सल्फाइड और द फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, एनी अदर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, देन इट प्रोड्यूसेस सिंटिलेशन, एक चमक पैदा होती है, तब जाकर हमें इसकी प्रेजेंस का पता चलता है. सो they themselves are invisible, but their behavior is observed when they strike zinc sulfide screen. And the next point is, they travel in straight line from cathode to anode. इनकी डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर भी लिया था कि they travel in straight line, और डायरेक्शन क्या थी? from cathode to anode. बट जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब ये डेविएट हो जाती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, रे डेविएट हो जाती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जो कि शो करता है दीज पार्टिकल कैरीज नेगेटिव चार्ज. एंड द सिमिलर बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है. इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने गैस ली. इवन इफ वी चेंज द गैस, हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लो और
some other gas ले लें, still the behavior of the stream observed remains the same. It means the particles which has been observed, which is a constituent of this cathode ray, is independent of the nature of the gas, and this way electron were discovered. It is assumed कि जो cathode ray है, this is a beam of negatively charged particle, and these negatively charged particles then called as electrons. यानी जो electron है ये independent of nature of gas है. It means this electron is present in every atom. This is a universal constituent of atoms. In 1897, J.J. Thomson performed an experiment to find charge to mass ratio of electron. इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि E से रिप्रेजेंट किया है डिवाइडेड बाय मास, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया. इसमें अगेन उसने एक बेल शेप्ड डिस्चार्ज ट्यूब ली. दिस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other. ये जो बच्चों प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, नीचे की तरफ. और ये जो क्रॉस दिखाए हुए हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, दैट इज टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. इन दिस वे लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन and this is the magnetic field direction. ये पेन के जो ढक्कन है इसकी तरफ डायरेक्शन में शो कर रहा हूं. This is electric field, this is magnetic field, and the movement of particle will be this way. The electrons are moving from cathode to anode. यहां पर ये कैथोड लिया है, एनोड के बीच में ये होल लिया हुआ है ताकि स्कैटर्ड बीम बिल्कुल नैरो डाउन हो जाए. इसको हमने यहां पर बैटरी से कनेक्ट किया. जैसे ही कैथोड से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे दे विल पास थ्रू दिस पोर ऑफ एनोड, एंड इफ देयर इज नो फील्ड, अगर ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेट किया है इसको स्विच ऑफ करके रखें, सो इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. And on the screen there is a phosphorescent material like we studied earlier, जैसे ZNS. यहां पर चमक पैदा होगी और इस तरीके से हमें इसकी प्रेजेंस का पता चलेगा. नाउ नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं. देयर इज नाउ नो मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस ray after passing through anode gets deviated towards positive plate, and after that it strikes at the point A. And now if we again switch off that electric field, this ray will again be striking at B. Now electric field is again made off, magnetic field is applied. The particles now deviate downwards, and in this way it reaches at C. If we observe the amount of deflection, we found this deviation depends on the strength of charge. जिस particles को हम read कर रहे हैं जितना ज्यादा charge होता है उतना deflection ज्यादा होता है. Q represent here the charge on particle, and here it will be the charge on electron. Greater the charge, greater is the deflection. Secondly, this deflection depends on mass. Greater the mass, greater will be the force. Force mass की वजह से उसका वेट ज्यादा होगा. But if the particle taken is lighter, it deflects more. If the particle is heavier, mass is more, it deflects less. B is magnetic field and E is electric field. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है.
Similarly, if magnetic field is applied, greater the strength of magnetic field, greater will be its deflection. Now finally, both the fields are switched on. अगर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक से ज्यादा है तो ये डिफ्लेक्शन B से थोड़ा ऊपर होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिफ्लेक्शन B से नीचे होगा. हमें दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड balances and it again strikes at B. And then by making the calculation, we find out the charge to mass on electrons to be 1.758820 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg. इसका डिटेल्ड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम बच्चों हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि दो फोर्सेस कैसे बैलेंस करती हैं तो E by M निकालते हैं. बट हियर वी नीड टू नो बाय द कैलकुलेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ E by M टू बी 1.758820 into 10 की पावर 11 कूलम पर kg. Now by the Millikan's oil drop experiment we found the charge on electron to be 1.6022 into 10 की power minus 19 coulomb. This help us to get the mass of electron. अगर हमें मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर E by M से डिवाइड कर दें, E से E कट जाएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा. तो इसका मतलब E की वैल्यू हमने फीड की और E by M जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला था थ्रू J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट, E by M फीड किया. ऑन डिवाइडिंग we get 9.1094 into 10 की power minus 31 kg as the mass of electron.